Hello students, how are you all? Welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. So students, we have an app by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store for Android phones. Once you have downloaded and logged in with your Gmail ID, you will be transferred to your home page where you can see all the courses that are offered by us. Once you have purchased the course, you can see your courses in the My Course section. But why our courses are so better? Why we think we provide you one of the best content? Because we provide you content on daily basis. In the daily basis, we provide you current affairs with 20 questions quiz as well as the PDF of the current affairs of daily. Then similarly for weekly, on weekly basis we provide you current affairs PDF as well as a 50 questions quiz that will help you to revise all the content that you have learned. Then on monthly basis also we provide you top 100 current affair questions PDF that will be the compiled PDF of the 100 questions of that particular month that will be very helpful for you. And not just this friends, we provide you in English as well as in Hindi too. So both English and Hindi students can enjoy our courses. Apart from this friends, we also provide you banking related question answers, the banking related MCQ questions, the quizzes that will help you prepare for the bank exams. Not just that friends, we provide you a new way of learning, that is your infotainment infographics. That is a different and interesting way of learning. Apart from this, we cover 20 topic wise current affairs. These topics are important such as apps, portals, important days, books and authors days, national affairs, international affairs, sports, defense, all these topics, these are highly important and questions from these particular topics are asked. Also we cover state-wise current affairs also that will help you to prepare for your state exams. Also friends, as I told you, if you use the code Vikas10, you will be given extra 10% discount on the purchase you make. If you have any problem regarding login and your application, then you can contact us on support@affairscloud.com. This is our email ID and you can contact us on our mobile phone, that is 9677333862. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम इंटरनेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे जून मंथ के। बहुत अच्छा सेशन रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा रिवीजन के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें से काफ़ी न्यूज़ ऐसी होंगी जो आप पहले रिवाइज कर चुके हैं, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो और कुछ न्यूज़ ऐसी हैं जो टू द पॉइंट होती हैं। देखो, ये जो आपका टॉपिक होता है ना, इंटरनेशनल अफेयर्स, आप इसमें बहुत सारी न्यूज़ें कवर कर सकते हो। ये न्यूज़ ऐसी होती हैं जो एक साल तक के जो करंट अफेयर होते हैं ना, डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आती है। आज यहाँ पे ये लॉन्च हुआ, कल वहाँ पे वो लॉन्च हुआ। तो आपको डिटेल में याद रखने की जगह आपको टू द पॉइंट चीज़ अगर पता होगी तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जाएंगे कि ये चीज़ ये है, ये चीज़ क्या है, तो वो पता होना चाहिए। जैसे अब एग्जाम्पल आ जाए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पर हुआ था, इंडियन डेलीगेशन को किसने लीड किया था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की फुल फॉर्म क्या थी, ठीक है, कब से कब तक हुआ था। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि क्या हुआ है, बट स्टिल आपको जो मेन चीज़ याद रखनी है वो टू द पॉइंट चीज़ें याद रखनी होती हैं। जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसका पार्ट 2 हुआ, अभी कहाँ पे हुआ, डेवॉस में हुआ। डेवॉस का है, स्विट्जरलैंड में है। किस व्यक्ति ने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया? पीयूष गोयल जी ने इंडियन डेलीगेशन को लीड किया। पीयूष गोयल की मैं बात करूं तो इन्होंने ही मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया था। कहाँ पर? बेल्जियम में। रीज़न क्या था? इंडियन मैंगोज़ को फॉरेन मार्केट में प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये करा, ठीक है। फिर ऐसी अगर मैं बात करूं, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान कुछ प्रोजेक्ट साइन हुए। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए इन्होंने साइन किया रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट या फिर रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, जो कि अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के साथ था, ग्रीनको के साथ था और औरोबिंदो रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ था। ग्रीन एनर्जी की बात करूं तो उन्होंने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जो कि आपका विंड एंड सोलर एनर्जी, इन दोनों को मदद से ये एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है। एक ही प्रोजेक्ट में आपकी विंड एनर्जी भी जनरेट की जाएगी यहाँ पे और आपकी सोलर एनर्जी भी जनरेट की जाएगी। फिर दूसरा था आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट इन द 10th एडिशन ऑफ इट्स मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 प्रोग्राम, जो कि हुआ एट WEF। इसमें इन्होंने 23 MOU साइन किए वेरियस अदर ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रीज के साथ विद अ टोटल अमाउंट ऑफ $4 बिलियन। ठीक है, तो ये दो प्रोजेक्ट भी याद रखिएगा, आपके वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में साइन किए गए थे। नेक्स्ट आ जाता है
ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग, ये ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2022 की रिलीज की गई कि कौन सी कंट्री की एयरफोर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो टॉप पर तो आ जाती है यूनाइटेड स्टेट्स की एयरफोर्स, सेकंड पोजीशन पे आ जाती है रशियन एयरफोर्स और थर्ड पोजीशन पे हमारी इंडियन एयरफोर्स आ जाती है एज द मोस्ट पावरफुल एयर फोर्स। हाईली इंपॉर्टेंट, ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग के दौरान इसको मेंशन किया इस पर्टिकुलर इंडेक्स में। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग द करंट रैंकिंग ऑफ द वेरियस आर्म्ड एयर सर्विसेज अक्रॉस द ग्लोब, जो कि रिलीज की गई वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, जो इंडियन एयरफोर्स है ना, इसने 6th पोजीशन रिकवर की इन द वर्ल्ड। और इंडियन एयरफोर्स की मैं बात करूं, इट एमर्ज एज द थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स। ये थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स निकल के आई ओनली आफ्टर यूएसए की एयरफोर्स एंड रशियन एयरफोर्स के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं बात करूं वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, इनमें इंडिया की रैंक 6th आती है, लेकिन अगर मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स की बात करें तो थर्ड पोजीशन पे इंडिया की एयरफोर्स आती है। नेक्स्ट डाटा पे आते हैं, क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा था जो पहली कंट्री थी जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट किया वो थी एल सल्वाडोर, और सेकंड पोजीशन पे आ जाती है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। एल सल्वाडोर और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने जब क्रिप्टो करेंसी को अपनाया था तो तब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला था कि अगर कल को आपकी कंट्री में कोई भी क्राइसिस आ जाती है, अगर आपकी इकोनॉमी बैठ जाती है, तो आप हमसे मॉनेटरी हेल्प नहीं ले सकते, जैसे रशिया और पाकिस्तान अभी लेने लग रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। तो अब याद रखिएगा, क्योंकि बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत फ्लक्चुएट करती है, ऊपर नीचे होती रहती है, तो उनको इकोनॉमी को भी उस हिसाब से अब अडेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा न्यूज़ आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड कंट्री कौन सी बनी जिन्होंने बिटकॉइन को अपनाया? सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। नेक्स्ट पे आते हैं इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग। ये इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग हुआ अभी स्टॉकहोम में, ये हुआ किनके बीच हुआ? इंडिया एंड स्वीडन के बीच हुआ। पहले तो यही याद रखो, इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग। ठीक है, फिर आगे आएंगे। इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग की बात करें तो ये क्या था? ये एक इनिशिएटिव था जो कि इंडिया एंड यूके के द्वारा, इंडिया एंड स्वीडन के द्वारा लिया गया था टू फॉलो द कमिटमेंट्स ऑफ COP26, जो कि ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था आपका 2021 में। उसके एजेंडाज को, उसके जो आपकी हैवी इंडस्ट्रीज होती है, हैवी इंडस्ट्री सेक्टर, उनको मीट करना ताकि वो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट कर सकें टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे जो आपका इंडिया एंड स्वीडन था ना, इन्होंने इंडस्ट्री ट्रांजिशन डायलॉग को होस्ट किया कहाँ पर? स्वीडन स्टॉकहोम में, एज अ पार्ट ऑफ लीड आईटी। ठीक है, इनका एक जॉइंट इनिशिएटिव है, इंडिया और स्वीडन का जॉइंट इनिशिएटिव लीड आईटी। लीड आईटी क्या है? लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। मतलब हम देखते हैं जो मोस्ट पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है, वो जो ये पॉल्यूशन क्रिएट किया जाता है ये किस वजह से होता है? ये आपका वन ऑफ द मेन रीजन है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो पॉल्यूट करती हैं, वो अपने गैसेस को, अपना जो वेस्ट मटेरियल है उसको चेक नहीं करते, बीट वाटर पॉल्यूशन, बीट एयर पॉल्यूशन। तो कंट्रीज, नॉट जस्ट कंट्रीज, इवन कंपनीज आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करें, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए वर्क करें, और जो भी वो प्रोसेसेस लाएं, जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सर्विसेज ऐसी हों कि वो एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट ना करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। इसी वजह से ये लीड आईटी लॉन्च किया गया था। इसमें आपकी सिर्फ कंट्रीज नहीं बल्कि कंपनीज भी होंगी उस कंट्रीज की। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें लीड आईटी की, तो ये कब लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा ये लॉन्च किया गया था इंडिया एंड स्वीडन के द्वारा यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में, जो कि सितंबर 2019 में हुई थी। इट वाज सपोर्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें आपकी कंट्रीज एज वेल एज कंपनीज दोनों पार्ट करेंगी। एंड इनका एम क्या रहेगा कि जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो हमारे पेरिस एग्रीमेंट है, उसको मीट किया जा सके। ठीक है, अभी रिसेंटली जापान एंड साउथ अफ्रीका ने भी इन लीड आईटी को ज्वाइन किया है, और अब टोटल 37 मेंबर्स हो गए हैं ऑफ दिस लीड आईटी विच कंप्राइजेज ऑफ बोथ कंट्रीज एंड कंपनीज। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, टर्की ने अपना नाम चेंज कर लिया। क्या नाम रखा? TURKIYE। आप यहाँ देख सकते हैं चेंज क्या है, ई की जगह आई हो गया और आखिर में YE भी हो गया। तो टर्की TURKIYE, टर्की नया नाम हो गया टर्की का। ये अप्रूव किसके द्वारा किया गया? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये चेंज ऑफ नेम अप्रूव करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इनके द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, और इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो हम 2060 तक का सिनेरियो देखें तो जो हमारे प्लास्टिक की डिमांड होगी ना, वो 3 टाइम्स हो जाएगी।
प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है। आप इसको अगर एक बार बना देंगे ना तो ये सालों साल आपके इन्वायरमेंट में रहेगा, ये डिग्रेड नहीं होगा अपने आप, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर प्लास्टिक इतना डिग्रेड नहीं होता तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इवन नॉट जस्ट फॉर द इकोसिस्टम ऑन लैंड, बल्कि जो आपका इकोसिस्टम एक्वेटिक लाइफ है उस पर भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका, ठीक। तो इसीलिए कि प्लास्टिक बढ़ता जा रहा है, आपको याद होगा इंडिया ने भी अभी एक अपनाया था 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की बात की गई ऑल ओवर इंडिया। इसकी जगह सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह हम पेपर बैग्स, अगर हम पॉलीथीन बैग्स की बात करें तो पेपर बैग्स, जूट बैग्स, ये सारे यूज में लाने की बात की गई क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे आपका प्लास्टिक की स्पून होती है, आपकी प्लास्टिक की स्ट्रॉ होती है, ये ऐसी चीज़ें ये बहुत हाईली यूजेबल रहती हैं, डेली डिमांड में रहती हैं और डेली बहुत अमाउंट का वेस्ट जनरेट किया जाता है। क्योंकि हम देखते हैं ये शॉपिंग मॉल्स में खाने के स्टॉल्स, रोड साइड पे खाने के स्टॉल बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इवन प्लेट्स भी आपकी प्लास्टिक की ना हो के आप पेपर प्लेट्स या फिर दूसरे प्रोडक्ट की प्लेट्स होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर खान क्वेस्ट एक्सरसाइज। खान क्वेस्ट एक्सरसाइज की बात करें तो ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली मंगोलिया के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। होस्ट किसके द्वारा कराई गई? मंगोलिया के द्वारा। इसमें 16 कंट्रीज या 16 नेशन पार्टिसिपेट करेंगे और आर्मीज का हमें पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक। इसी के साथ साथ अगर आपको ध्यान देना हो इंडिया की तरफ इट वॉज लद्दाख स्काउट्स। लद्दाख स्काउट इंडिया का कॉन्टिजेंट था, इंडियन आर्मी का, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया आपका खान क्वेस्ट में। मंगोलिया में हुई थी, ठीक है। और मेन एम क्या था? इट विल एनहेंस द लेवल ऑफ डिफेंस कॉपरेशन बिटवीन इंडियन आर्मी एंड द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज। इसी के साथ साथ एक और एक्सरसाइज का नाम याद रखना जो इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में कंडक्ट कराई जाती है, उसका क्या नाम रहेगा? बस इन 2 कंट्रीज के बीच में ही ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जाती है। ये है नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब इंडिया का इन्वायरमेंट के प्रति क्या रुझान है, वो कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और कितना इन्वायरमेंट की तरफ वर्क कर रहा है। उन सारे पैरामीटर्स को कंपनीज कितना इन्वायरमेंट की तरह रुझान रखती हैं, कितना वो वर्क कर रही हैं, कितना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यहाँ पे वैल्यू किया जाता है, उन सारी चीज़ों की बात की गई। और इवन इंडिया, जब यहाँ पे ये डाटा रिलीज़ किया गया, इंडिया नाखुश था क्योंकि पाकिस्तान एंड बांग्लादेश को भी इनसे बेटर कंडीशन में रखा गया था, बेटर स्पॉट दिया गया था इन द रैंक। तो अगर इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करे जाए 2022 की, इंडिया की रैंक रहेगी 180। डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन पे, यूके सेकंड पे, फिनलैंड थर्ड पे और इंडिया आ जाता है 180वें पोजीशन पे, ठीक। अगर फिर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स की, अभी यूएस में एक बड़ा अच्छा लॉ पास किया गया, राइट टू रिपेयर लॉ। राइट टू रिपेयर लॉ क्या है कि अगर आपका कोई भी मोबाइल फ़ोन होगा या फिर आपका स्मार्टफोन है या फिर आपका कंप्यूटर है या आपका लैपटॉप है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रिपेयर करने का लॉ प्रोवाइड किया गया कि जो कंपनीज हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि कैसे आप इन मोबाइल फोन्स को, इन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस को रिपेयर कर सकते हैं और उनके पार्ट्स को भी अवेलेबल कराएगी टू द इंडिपेंडेंट रिपेयर्स, ठीक है। द डिजिटल फेयर रिपेयर एक्ट वुड अलाउ रिक्वायर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लाइक सेलफोन्स एंड कंप्यूटर्स, इनके मैन्युफैक्चरर्स को कि लोगों को रिपेयर एंड डायग्नोस्टिक की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उनको पार्ट्स अवेलेबल किया जाए ताकि वो खुद अपने मोबाइल फ़ोन या अपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को रिपेयर कर सकें। ये इंक्लूड नहीं करेगा आपके होम अप्लायंस को, जैसे आपके फ्रिज और एसी, इनको इंक्लूड नहीं करेगा। कोई भी आपके रेडियोस को, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को, ऑफ रोड इक्विपमेंट्स को, इन चीज़ों में ये लागू नहीं होगा। सिंपली आपके मोबाइल फोन्स एंड लैपटॉप्स या कंप्यूटर जो आप यूज़ करते हैं उनके लिए ये चीज़ सूटेबल है, उनके लिए ये एक्ट लाया गया है, डिजिटल फेयर रिपेयर एक्ट, या फिर हम इसको कह सकते हैं राइट टू रिपेयर लॉ। किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। हम पहले बहुत टाइम से एक न्यूज़ डिस्कस करते आ रहे हैं कि इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में $800,000 प्लेज किए, रीज़न बीइंग हिंदी की लैंग्वेज को बढ़ाने के लिए। तो अभी फर्स्ट टाइम याद रखना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया एक रेजोल्यूशन ऑफ मल्टीलिंग्विज्म कि हम मल्टीलिंग्विज्म को बढ़ाएंगे, इसीलिए उन्होंने हिंदी लैंग्वेज को मेंशन किया फॉर द फर्स्ट टाइम। हिंदी के साथ साथ आपको 2 लैंग्वेज और याद रखनी है, बंगला एंड उर्दू।
इन दोनों लैंग्वेजेस का भी यूज़ किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम बाय यूनाइटेड नेशंस। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आपको 6 लैंग्वेज याद रखनी है जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज हैं यूनाइटेड नेशंस की। वो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश एंड, ठीक है, ये 6 लैंग्वेजेस हैं आपकी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज हैं आपकी यूनाइटेड नेशंस की। ऑलराइट, इसी के साथ साथ अलग लैंग्वेजेस हो जाती हैं फिर वो जो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि कल्चर को प्रमोट किया जा सकते हैं, मल्टीलिंग्विज्म को प्रमोट किया जा सके इन यूनाइटेड नेशन। फिर कमिंग बैक, कौन कौन सी लैंग्वेज यूज़ की गई? हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। इन्होंने यूएनजी ने अडॉप्ट किया एक मल्टीलिंग्विज्म पे रेजोल्यूशन। इसी के साथ साथ मैंने बताया बांग्ला एंड उर्दू, इनको भी फर्स्ट टाइम मेंशन किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फिर हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट ट्रेजरी की मॉनिटरिंग लिस्ट के। इंडिया इज अमंग द 12 इकोनॉमीज ऑफ करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट ऑफ यूएस। ये करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट क्या है कि जब भी हम जानते हैं इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है, तो इंडिया की रुपीज़ का इफेक्ट यूएस के डॉलर पे कैसे इफेक्ट आएगा, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, कितना स्ट्रांग हो सकता है, कितना फर्क पड़ सकता है। ठीक है, इसीलिए इंडिया को 12 इकोनॉमीज में रखा गया ऑन करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट की इंडिया की करेंसी का क्या इंपैक्ट पड़ सकता है जब वो ग्रो करेगी। फॉर एग्जांपल अभी हम देखेंगे जैसे यूरो गिरता जा रहा है और यूरो अप्रॉक्सीमेटली $1 के इक्वल हो गया है। इसी के साथ आप देखेंगे $1 अप्रॉक्सीमेटली अब आपके 80 रुपये के करीब हो गया, जो कि इंडिया का रूपी गिरता जा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि जो परचेजिंग पावर है इंडिया की वो कम हो जाएगी। आप ऐसे समझिए, अगर मैं इंपोर्ट करूं, कोई चीज़ मैं खरीद रहा हूँ दूसरे देशों से, वो मुझे अब महंगी पड़ रही है। पहले वो $1 की होती थी, पहले वो 77, 78, 79 की पड़ती थी, लेकिन अब मुझे वो 80 रुपये की पड़ रही है। ₹1 बढ़ गया, ₹2 बढ़ गए, तो हमारा इंपोर्ट क्या होगा, महंगा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ, एक्सपोर्ट से क्या होगा, वही चीज़ उल्टी हो जाएगी। जो चीज़ के लिए मेरे को पहले 77, 78, 79 रुपीज़ मिल रहे थे, अब मुझे वहाँ पे 80 रुपये मिल रहे हैं, मतलब मेरे को ज़्यादा अमाउंट मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, सस्ता। एक्सपोर्ट का क्या हो जाएगा, मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब जो अब बाहर से अमाउंट आएगा इंडिया में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, पहले मान लो अगर $2 के आते थे 156, 157 रुपीज़, तो अब $2 के आएंगे 160 रुपये सीधा, तो ₹4 बढ़ गए आपके एक्सपोर्ट में। इसलिए कहते हैं एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा करना चाहिए। एक्सपोर्ट से क्या होगा, इवन आप देखेंगे मेक इन इंडिया की बात की गई कि ट्रेड डेफिसिट ना हमारा हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या आपका इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है। ऑलवेज एक्सपोर्ट ज़्यादा रहेगा तो इंडिया तो करेंसी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी, क्योंकि इंडिया ज़्यादा अमाउंट का पैसा ला रहा है एज़ कम्पेयर टू जो खर्चा कर रहा है। आप इसको अपनी सैलरी से समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी है, आप सैलरी ज़्यादा ला रहे हैं और खर्चा कम कर रहे हैं, तो वो बेटर है, या फिर आप सैलरी कम लाएं और खर्चा ज़्यादा करें, तो वो तो फिर आपका नेगेटिव हो गया, आपका लोन बढ़ जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड का इशू आ जाएगा, उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ट्रेड ज़्यादा करें तो एक्सपोर्ट हमें ज़्यादा करना चाहिए। फिर अगर जो मॉनिटरिंग लिस्ट की बात करें, वो जो 12 कंट्रीज़ हैं वो हैं चाइना, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ताइवान, वियतनाम एंड मैक्सिको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर बिम्स्टेक की बात करें तो 25th फाउंडेशन डे अभी बिम्स्टेक का सेलिब्रेट किया गया ढाका में। ढाका क्या है, बांग्लादेश की कैपिटल है, और ढाका को ही याद रखिएगा वर्ल्ड की मोस्ट नॉइज पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी भी बोला गया है, और इसी के साथ साथ ये आपकी वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एयर पॉल्यूटेड सिटी भी है। फिर अगर बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, बिम्स्टेक डे 6 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार ये 25th था। दैट मीन्स सिल्वर जुबली कह सकते हैं। हाफ सेंचुरी की भी हाफ सेंचुरी को सिल्वर जुबली कहते हैं, और हाफ सेंचुरी हो जाए मतलब 50 साल पूरे हो जाए या 50th एनिवर्सरी हो तो सिल्वर गोल्डन जुबली। ठीक है, तो ये 25th एनिवर्सरी थी 6 जून को आपकी बिम्स्टेक की, जो कि सेलिब्रेट की गई ढाका में। इजराइल की बात करें, इजराइल की सबसे पहले तो याद रखना नेफ्ताली बेनेट, ये शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्ताली बेनेट इजराइल के। और अब नेफ्ताली बेनेट की जगह कौन आ गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर, वो है यार लिपिड। यार लिपिड आपके नए प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के। इजराइल ही इंडिया में 150 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कर रहा था, 150 विलेजेस में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की बात कर रहा था, और इजराइल ने ही अभी पहला अरब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया यूएई के साथ। ये पहला अरब नेशन होगा जिसके साथ इजराइल ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA साइन करा है, तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा।
नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन नेशंस ने भी बोला है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 2035 तक जो हमारी पेट्रोल और डीजल की कार्स हैं ना उनकी सेल्स पे बैन लगा देंगे, क्योंकि ये वो फ्यूल हैं, फॉसिल फ्यूल हैं जो कि कार्बन रिलीज करते हैं ऑन देयर बर्निंग। जब हम उनको बर्न करते हैं तो कार्बन रिलीज किया जाता है। तो 2035 तक इनके सेल को बैन कर देंगे। इसी के साथ साथ ऑल्टरनेट फ्यूल क्या हो सकता है, हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, सोलर फ्यूल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, जैसे सीएनजी है इंडिया में। तो ये सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स रहेंगे आपके फॉर द व्हीकल्स। इसी के साथ साथ आपको याद हो तो पहला एयरपोर्ट जो कि आपकी ड्रोन्स के लिए होगा, यूएवीज के लिए होगा, ठीक है, एयर टैक्सीज के लिए हो सकता है। तो कहाँ पे लॉन्च किया गया स्पेसिफिकली, ये आपका एयर ड्रोन्स वगैरह, या ड्रोन्स या फिर यूएवी या फिर एयर टैक्सीज के लिए होगा। ये यूके में सेटअप किया गया है, ठीक है, पहला ड्रोन ऑफ इट्स काइंड यूके, यूनाइटेड किंगडम में होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की। इसमें डेनमार्क ने टॉप किया और इंडिया की रैंक रहेगी 37। 6 पोजीशन बेटर हुई है इंडिया की एज कम्पेयर टू लास्ट इंडेक्स ऑफ 2021। तो डेनमार्क की बात करें फर्स्ट, स्विट्जरलैंड सेकंड, सिंगापुर थर्ड, और यूएस आ जाता है 10th पोजीशन पे और इंडिया आ जाता है 37th पोजीशन पे इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ठीक है। फिर हम बात करेंगे I2U2 की। अभी रिसेंटली एक ग्रुप सेटअप किया गया, जैसे क्वाड होता है आपका, ऑकस था, सिमिलरली आपका एक I2U2 सेटअप किया गया ग्रुप, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स रहेगा। ये ग्रुप की पहली मीटिंग वर्चुअली हुई थी, जो कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन के द्वारा होस्ट की गई, जब वो एक टूर पे थे इजराइल में। इजराइल से ही आपकी मीटिंग होस्ट की गई थी। तो कौन कौन सी कंट्रीज इसके पार्ट रहेंगे, इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस I2U2 का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया की। एक चीज और याद रखना, here this new grouping is known as I2U2, I standing for India, Israel and U standing for USA and UAE। नेक्स्ट आ जाता है इंडिया की क्या रैंक रहेगी स्किल प्रोफिशिएंसी ग्लोबली। इनकी इंडिया की रैंक रहेगी 68। ये डाटा रिलीज किया गया था कॉर्सेरा के द्वारा। कॉर्सेरा एक और एडटेक प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, जो आपको ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल कराता है, सर्टिफाइड कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो इन दिस ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2022 की, जो कि अभी रिसेंटली कॉर्सेरा के द्वारा रिलीज की गई, इसमें इंडिया की रैंक रहेगी 68 ग्लोबली एंड एशिया में इनकी रैंक रहेगी 19th। अगर वर्ल्ड की बात करें तो इसमें टॉप किया किन्होंने, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया विद 99% प्रोफिशिएंसी इन बिजनेस, 94 इन टेक्नोलॉजी, 97 इन डाटा साइंस, जो कि सेकेंड पोजिशन पे फिर डेनमार्क, थर्ड पे इंडोनेशिया, फोर्थ पे बेल्जियम, फिफ्थ पे सिंगापुर आ जाता है। ऑलराइट, याद रहेगा। चलिए, इंडिया की क्या रैंक रहेगी ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में, 68th रैंक रहेगी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, और टॉप किया स्विट्जरलैंड ने। रिलीज किसके द्वारा, कॉर्सेरा के द्वारा। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई। कहाँ पे, जिनीवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो याद रखना, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 12th एडिशन जिसका था, ये को होस्ट किया गया था कजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड के द्वारा मिलके, ठीक है, कजाकिस्तान एंड स्विट्जरलैंड के द्वारा मिलके इसको को होस्ट किया गया था 12 जून से 16 जून के बीच में, ठीक। और यहाँ पे ट्रेड मिनिस्टर्स बाय 164 नेशंस, उन्होंने इसको पार्टिसिपेट देखने को मिला। यहाँ पे 2 कंट्रीज जिन्होंने को होस्ट किया WTO मीटिंग को, 12th WTO मीटिंग को, स्विट्जरलैंड एंड कजाकिस्तान। G20 की मैं बात करूं, अभी प्रेसिडेंसी किसके पास है, इंडोनेशिया के पास। इसके बाद किसके पास होगी, इंडिया के पास होगी। नेक्स्ट, यूरोपियन यूनियन ने रिकमेंड किया यूक्रेन एंड मोल्डोवा का टू बी अ पार्ट ऑफ देयर मेंबरशिप कैंडिडेट, मतलब यूक्रेन एंड मोल्डोवा अब पार्ट बन सकते हैं यूरोपियन यूनियन के। और जो ये लड़ाई शुरू हुई थी वर्ल्ड में यूक्रेन के ऊपर, वो रीज़न ये था कि यूक्रेन प्लान कर रहा था टू बी अ पार्ट ऑफ नेटो, इसीलिए रशिया ने इन पर अटैक किया बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन। सो अब लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 8th मीटिंग ऑफ द हेड्स ऑफ द बॉर्डर सर्विसेज के मीटिंग की, जो कि अभी रिसेंटली न्यू दिल्ली में हुई थी। ये SCO की मीटिंग थी, ठीक है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो 8th मीटिंग ऑफ द बॉर्डर हेड्स ऑफ द बॉर्डर सर्विस, जो कि न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराई गई ऑफ SCO। याद रखना, इंडिया की तरफ से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह ने पार्टिसिपेट किया इस पर्टिकुलर 8th एडिशन ऑफ SCO में, जो कि न्यू दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं SCO की बात करें। ये SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। शंघाई चाइना में इसको फाउंड किया गया था 2001 में। करंटली जो मेंबर्स रहेंगे 8 मेंबर्स हैं SCO के, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान,
किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ये सारे पार्ट रहेंगे आपके SCO मेंबर्स के, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग, चाइना में ही। मूविंग ऑन टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी रिसेंटली एक डाटा रिलीज किया गया जिसके हिसाब से, और ये डाटा स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के द्वारा रिलीज किया गया। इसमें बताया गया कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली का है, ये आपका वन ऑफ द फाइनेस्ट इन इंडिया एंड साउथ एशिया है फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। मतलब बेस्ट एयरपोर्ट है इंडिया का और साउथ एशिया का फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव ईयर। ये बताया गया बाय स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2022 के दौरान। ठीक है, उनको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया इस अवार्ड से, इस कैटेगरी से। एंड इनको याद रखना, ये कहाँ पे सम्मानित किया गया? पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो जो कि पेरिस में हुआ था 16 जून को, तब ये डाटा रिलीज किया गया, ये अवार्ड या फिर इनको ये सम्मानित किया गया। फिर इसी के साथ साथ याद रखना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ये पहला रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क करने वाला एयरपोर्ट है इंडिया का, जो कि हाइड्रो एंड सोलर पावर पे वर्क कर रहा है, और इनका टारगेट है टू बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय द ईयर 2030। मूविंग ऑन, फिर हम बात करेंगे ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग रिपोर्ट की। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा भी एक रिपोर्ट रिलीज की गई, गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की जो रैंक रहेगी वो है 4th इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिसाइकलिंग, और चाइना की मैं बात करूं तो चाइना आ जाता है 1st पोजीशन पे इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिसाइकलिंग। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया ने अब तक 1800 टन गोल्ड को रिसाइकल कर चुके हैं, इसलिए ये 4th पोजीशन पे आता है, और चाइना आ जाता है 1st पोजीशन पे इन द टर्म्स ऑफ गोल्ड रिसाइकलिंग। मूविंग ऑन, वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है? ये आपकी वियना है। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया में। वियना के बाद कोपेनहेगन, 3rd पे ज्यूरिच, 4th पे कैलगरी। तो ये याद रखना, ये आपकी कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड की मोस्ट लिवेबल सिटीज़ में आती हैं। तो सबसे ज़्यादा टॉप पर कौन सी है? वियना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, यहाँ पे जो कैटेगरीज होती हैं किसके बेसिस पे इनको बोला जाता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, स्टेबिलिटी, कल्चर, एनवायरनमेंट, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, एजुकेशन कैसी हैं, इन सारी चीज़ों को देख के ये डाटा रिलीज़ किया जाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, तो ये रिलीज़ किसके द्वारा? EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। इसमें इंडिया की न्यू दिल्ली की बात करें, जो कैपिटल है इंडिया की न्यू दिल्ली, इसकी रैंक आ जाती है 112। मुंबई की बात करें 117 रैंक पे आता है। ठीक, और टॉप पर कौन सी आती है आपकी? वियना। 2nd पे कोपेनहेगन, 3rd पे ज्यूरिच, 4th पे कैलगरी, और 5th पे आ जाता है वैंकूवर आपका, जो कि कनाडा में है। ठीक है, तो 3rd पोजीशन 2 से शेयर की जाती है, ये आप देख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे खुफसुगर लेक। ये मंगोलिया की लेक है और इसको यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड किया गया है, ये भी याद रखना है। फिर हम बात करेंगे कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन की। अभी 2 कॉमनवेल्थ ग्रुप ऑफ नेशन में 2 नेशंस को ऐड किया जा रहा है वेस्ट अफ्रीका के, वो है गैबॉन एंड टोगो। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन फ्यूचर में आता रहे तो कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि आपका क्या व्यूज़ है। आज की वीडियो में अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपको लगा कि हाँ सर बहुत अच्छी रिवीजन हुई है, ऐसा रिवीजन सेशन बहुत ज़रूरी रहेगा हमारे लिए फॉर फ्यूचर पर्सपेक्ट, तो ज़रूर से कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि सरकारी एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो भी आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। That's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.